told by somebody who picked me up at the airport, some rich developer's child was driving some expensive car at 130 kilometers, right, at night, and he killed two on the motorcycle, is it not? And both the youngsters belong to families where there was only one son each, is it not? Yes or no? Isn't that sad? Why does this happen? Because very often you and I as business people, right, all we care about is money. And we start taking shortcuts, yes or no? And a shortcut actually ends up taking us in the wrong direction. And Matsushita Konosuke that way I think was very, very clear. He said, a leader should have a vision. A leader should have a vision. Simply acting on advice of others without any ideas of your own is not leadership. कहते एक लीडर को पता होना चाहिए उसने क्या करना है. Why are we showing our hands to astrologers? Isn't that the saddest thing? अगर मैं किसी को अपना हाथ दिखा के पूछूं कि बताओ मेरा भविष्य क्या है, मतलब how can he tell my future? You think he can tell me my future? एक तरफ हम पंडितों को अपना हाथ दिखाते हैं, दूसरी तरफ हम भगवत गीता पढ़ते हैं, राइट? कितना कंफ्यूजिंग है. लॉर्ड कृष्णा said it, made it very very clear कि जो आप करोगे ना वो कॉन्सिक्वेंस आप भुगतोगे या भोगोगे, उसमें मैं भी बीच में नहीं आ सकता. क्यों जी? तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं उपाय ढूंढने के लिए? मतलब अपना भविष्य तो आपको खुद पता होना चाहिए, जो किया है उसी का नतीजा आप भोगोगे या भुगतोगे. एंड मात्सुशिता कोनोसुके said that you are responsible for your own fate. And like I said, I'll again re-emphasize, what you want to be is far more important than what you are. And Matsushita Konosuke actually proved that right, along with many other people. Matsushita Konosuke, for that matter, is one person. Morita Akio of Sony, again, is another person who actually did very, very well in spite of many challenges. For any person to succeed in life, when I say succeed in life, it means fulfilling your potential. हम सब में potential है. Would you agree or not? But very often, you and I, we do not fulfill our potential because we are not clear about our purpose. Matsushita Konosuke, at a very young age, when he started his business, he was looking for purpose. कहता मेरा purpose क्या है? In fact, business तो करना शुरू कर दिया, but साल डेढ़ साल उसको पर्पस ही ना समझ में आया. कहता सर अगर पापी पेट को ही पालना है तो मैं फिर कहीं मंदिर में जाके बैठ जाता, वहाँ कोई ना कोई आते जाते रोटियां फेंक देगा. पर्पस मेरा क्या है? He did not know what his purpose was. See, unless you and I make an effort to search our purpose, is it not, right? You and I, we will not get our purpose. It's very sad nowadays. Most of us are wasting so much time mindlessly watching things which have no meaning. Is it not? Yes or no? मतलब इंडिया टीवी देखेंगे तो पर्पस कहाँ समझ में आएगा? इंडिया टीवी तो कह रहा था पिछले साल कि भैया दुनिया तबाह होने वाली है. क्या हुआ? मात्सुशिता कोनोसुके सेड कि आपकी और मेरी जिम्मेवारी कि आपका पर्पस क्या है. अगर बिजनेस आपने शुरू किया है, पर्पस क्या है? प्रॉफिट इज नॉट द पर्पस. प्रॉफिट एक्चुअली इज एन एनेबलर फॉर यू टू अचीव योर पर्पस. मुनाफा जो है वो आपको अपने जो पर्पस को अचीव करने का एक साधन है. डू नॉट मेक प्रॉफिट द पर्पस. प्रॉफिट enables you to achieve your purpose. Obviously goals, yeah, big goal becomes a purpose, I guess. And इनका क्वेस्ट शुरू हो गया, मेरा पर्पस क्या है. पहले साल पैसा कमाया इन्होंने. ही यूज्ड टू मेक ये होल्डर्स, बल्ब के होल्डर बनाते थे. 1916 में उन्होंने यही कंपनी शुरू की, 3 आदमी ने. ये इनकी वाइफ और इनके साले साहब वो फिर वो बनाते थे होल्डर्स. मेहनत की, नोट कमाए, इनकम टैक्स दिया. अगले साल और नोट कमाए और इनकम टैक्स दिया, और इनकम टैक्स का अफसर आ गया. कहता मुझे रिश्वत दो. कहता क्यों दो? क्योंकि तुमने ज़्यादा मुनाफा कमाया. तो ये बेचारा घबरा गया और रिश्वत दे दी इनकम टैक्स ऑफिसर को. पर रात भर सो नहीं पाया. कहता मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, राइट, और इनकम टैक्स वाला हल्का से हड़का गया और मुझे देना पड़ गया. मैं घबरा गया, पता नहीं क्या कर देगा. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग हिमसेल्फ कि व्हाई एम आई सो टिमिड. मैंने गलत क्या किया है? मेहनत कर रहा हूँ मैं, बेईमानी करता नहीं हूँ, फिर इससे डरा क्यों? अगेन ही स्टार्टेड टू रियलाइज कि आई डोंट नो माई पर्पस. ना पर्पस अगर आपका क्लियर हो जाए तो आपको डर कहाँ लगेगा? कम लगेगा. इज इट नॉट? यस और नो?
He started his company in 1916. For 2 years, one thing that was in his mind was purpose क्या है. करता चला गया, अपना bulb holder वगैरह बनाता चला गया. And one day in the month of August, it was very, very hot in Osaka, where he was having a small company. Small company तो खैर नहीं थी, 3 ही लोग थे उसमें. But the company had been formed in this form, Matsushita Electric Industries. वो किसी की वेट कर रहा था, किसी ग्राहक की वेट कर रहा था. और इतने में क्या देखा कि एक रिक्शा वाला, जैसे कि पहले इंडिया में भी रिक्शा होता था, हाथ से चलाते थे, आया, उसने किसी को उतारा, रिक्शा नीचे खड़ी की और किसी के घर चला गया, घुस गया, गेट खोला और वहाँ पे गार्डन था, गार्डन में एक नलका लगा हुआ था पौधों को पानी देने के लिए. वो नलका खोला और पानी पिया और बंद किया नलका, गेट बंद करके चला गया. और ये देख रहा था मात्सुशिता, और देखा कि जब इस रिक्शा वाले ने पानी पिया तो उसके चेहरे पे बहुत सुकून आया है. पर ना उसने पूछा उस मालिक से, ना घंटी बजाई कि भैया मैं तेरा पानी पी लूँ या ना पी लूँ, पर वो पी के चला गया. और कहते हैं कि इस चीज़ को जापान के समाज में चोरी नहीं मानते. क्यों भैया, आप किसी का पानी पी रहे हो, राइट, उसके घर से पी रहे हो, इसको चोरी नहीं मानते. तो फिर इन्होंने सोचना शुरू किया और रात को इनको समझ में आया कि हालांकि बिना पानी के कोई रह नहीं सकता, क्यों, पर उसको पीने में लोग चोरी नहीं मानते क्योंकि पानी बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है. और क्योंकि अबंडेंस में अवेलेबल है उसका दाम बहुत कम है, तो कोई बुरा नहीं मनाता. तो उनको फिर धीरे धीरे समझ में आने लग गई कि मैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स जापान में एक दिन पानी से कम भाव में बनाऊंगा और उसमें मुनाफा भी कमाऊंगा. Now imagine in 1918 to even think of this, is it not? The man died in 1989. By 1987, many of the products being sold by Matsushita were cheaper than bottled water. जो bottled water नहीं था उससे सस्ते में उनका सामान और धनाधन मुनाफा भी कमाते. Now this gave him a 70-year purpose. और अगले साल जब पर्पस उन्होंने डिफाइन कर लिया, जब आया इनकम टैक्स ऑफिसर है, उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया. इनकम टैक्स ऑफिसर को समझ नहीं आया कि दरवाज़ा क्या बंद कर रहा है. फिर खड़े होकर से पूछते हैं कि पिछले साल तो रिश्वत ले गया था, इस साल में तो रिश्वत नहीं दूंगा, मुझे फिलहाल तो हिसाब दे कि जो टैक्स दिया था तुमने क्या किया उस टैक्स का, बताओ क्या किया है. वो भी घबरा गया, कह रहे जिसको बुलाना बुला ले, मैं अब आऊँगा तुम्हारे ऑफिस में पता करने के लिए कि जो मैंने टैक्स दिया है उसका तुम लोगों ने क्या किया है. एंड गेस व्हाट, ही स्टार्टेड अ लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट. सरकार को सुधारने के लिए इन्होंने कई संस्थाएं खोली. एंड in fact, if Japanese government is not as corrupt as Indian government, I think part of the reason is why, because Matsushita Konosuke started educating politicians at a very young age. Imagine, one man can do so much, is it not? Yes or no? Why? Because he was able to identify his purpose. I think it's very important for you. वो क्या कहते हैं कि the products and services are the result of your labor. Empower yourself with a purpose. देखिए, जो भी आप चीजें बनाते हैं या कुछ सर्विस किसी को प्रदान करते हैं, that is your labor, is it not? Yes or no? जानवर में और इंसान में एक ही फर्क है, जानवर को पता नहीं कि वो काम क्यों कर रहा है, क्यों जी, पर इंसान को तो पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है. Yes or no? Now, this is judo. Purpose gives you a sense of direction and momentum to accomplish desired results over a long periods of time. जूडो का पर्पस ये नहीं है कि आपने अगले को हराना है. बाउट टू बाउट में तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, is it not? Anybody who starts practicing judo, his purpose should be to become a better person. Better person का मतलब क्या है कि आप अपने भय को काबू करो, अपने, और अगले जिसके साथ आप भिड़ रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हारा गुरु है वो. That's the spirit of judo. और बिजनेस में भी क्या है कि कंपटीशन इज नॉट आउट टू बीट यू, competition is out there to make you better, and you are competing with your competition to serve the customers better. Now that's the mindset of Matsushita Konosuke. और यहाँ पे कंपटीशन को चित कर देते हैं, उसके बाद कस्टमर को सर्व नहीं करते. The whole purpose of you being in the business is thoroughly defeated.
उसका नतीजा क्या होता है? You may end up making a lot of money, but then your own family can go down in the wrong direction. Is it not? You may be able to buy expensive cars, but then there's no moral direction for you or your family. And guess what? You end up creating more problems for yourself. A sense of purpose is a bigger motivator than a bag of incentives. You as a leader, जब आप में एक sense of purpose होगा, आपके वर्करों में भी एक sense of purpose होगा. And then you create many owners. You're not the only owner anymore. In fact, if you were to see Matsushita Konosuke, he was the first entrepreneur to realize that if my workers were to start to think, अगर वो भी सोचना शुरू कर दें कि हम किस प्रकार से कॉस्ट को नीचे गिराएं और क्वालिटी को उठाएं, तो सर मैं नहीं रहूंगा मालिक, सभी मालिक बन जाएंगे. Wouldn't that be a better way? Yes or no? And in fact, Matsushita Konosuke was able to create that culture where every worker thought कि ये मेरी कंपनी है. ये भारत देश किसका है? देखिए, हम हमारा कहते हैं, जापान में मेरा कहते हैं. देश किसका है? हाँ, जब तक मेरा नहीं करेंगे तो आप और मैं काम कहाँ करेंगे? हमारा जब कहते हैं तो कहते हैं देश हमारा, काम तू कर. बट यू गॉट टू रियलाइज, मात्सुशिता कोनोसुके वाज वेरी क्लियर कि मेरा, ये मेरा. वो कहते हैं कि जब तक आप किसी इंसान को आराम नहीं देंगे, आप आनंद का एहसास नहीं कर पाओगे. Matsushita Konosuke had a very strong philosophy. When I give comfort to my customers, in the process I gain joy. तो जब हर वर्कर, हर एग्जीक्यूटिव, इंक्लूडिंग Matsushita Konosuke, लगा हुआ है दिन रात कस्टमरों को आराम देने में, और बदले में क्या ले रहे हैं? आनंद. This concept is something which is very powerful. देखिए, आप और मैं भी तो आसपास औरों को आराम देते ही हैं कि नहीं देते? क्यों? Don't you give comfort to others? Yes or no? Don't you give comfort to your parents, to your spouses, to your children, to your bosses, to your customers? Yes or no? देते हो ना आराम, पर कई लोग आनंद नहीं लेते बदले में. क्यों? आराम देंगे, साथ में रोते रहेंगे, जीना हराम कर दिया मेरी बीवी ने, मेरा बाप जब देखो दिमाग चाटता है, मेरे बच्चों ने नाक में दम किया हुआ है, मेरे बॉस को देखो जब देखो रगड़ देता है. भाई, बॉस को तो आराम देना ही होगा आपको, कस्टमर को आराम नहीं दोगे. पर कई लोग आनंद लेना नहीं सीखते. All they think is, I'm sacrificing. So Matsushita was very clear. When you work here, do not work with a sense of sacrifice. Work with a sense of joy. अगर ये दिमाग में बात बैठ जाए तो then I will come out. और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था. क्यों जी? Strong individuals make a nation, weak ones make a mob. Strong individuals make a nation, weak ones make a mob. That's a Matsushita philosophy. Every worker is out there giving comfort to somebody else and taking joy in the process. Money is incidental. Money is incidental. Unfortunately, कभी-कभी क्या होता है ना कि वो जैसे बार गर्ल में लड़कियों को नोट नहीं फेंकते, वैसे अगर हम एम्प्लॉयज को ऐसा नोट फेंकेंगे तो हमने तो एम्प्लॉय को डिमीन कर दिया. Is it not? Yes or no? पैसा भी देना है, but पैसा is not the way to get the guy to contribute to others. You've got to create that mindset in the employee. जैसे कि यहाँ जापानी कंपनीज में आप देखेंगे, the quality is very high because the Japanese employee or the worker has a sense of, ये गाड़ी मैं बना रहा हूँ. वो ये नहीं सोच रहा कि भाई कंपनी बना रही है, गाड़ी कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ. And part of the reason why Japanese have done so very well is because Matsushita Konosuke was one of the first leaders to start creating that philosophy. Now, once you have a purpose, imagine in 1918, Matsushita Konosuke created a purpose for himself. कि I'll make electrical items cheaper than water. सुनने वाले तो ये सोचते थे पागल हो गया, ये क्या कह रहा है? How can that be possible? It's just like mobile phones, right? I'm sure 1996 में अगर कोई आपको कहता कि incoming free हो जाएगी, back when incoming was also being charged, is it not? तो आप कहते पागल हो गया, हफीम खा के बात कर रहा है. और I'm sure आने वाले 10 सालों में
फॉर एवरी मिनट दैट यू टॉक ऑन द मोबाइल फोन, टेलीकॉम कंपनी वाले आपको पैसे देंगे, 2 रुपए 3 रुपए, होगा ना। आप 2000 मिनट बात करोगे, आपको कोई कंपनी 4000 देगी। आपको ये रेट ठीक नहीं लग रहा, कोई और कंपनी हमारे को 3 रुपए के हिसाब से दे रही है, तो ठीक है जी, that is what he did in 1918. But once you have a purpose, then you've got to have a ability to constantly untrap your mind. Untrap your mind. अक्सर हम कहते हैं ये हो नहीं सकता। हो सकता है, मे इस तरीके से नहीं हो सकता, किसी और तरीके से हो सकता है। क्यों साहब? Common sense and spontaneity helps. Respond naturally, strive for transparency. Harmony of odds. Morning. Now, this is again a small scene from the movie Last Samurai. उसमें क्या दिखा है कि एक अमेरिकन, टॉम क्रूज, right? He is learning the Japanese way. And हैरान हो रहा है कि इन जापानियों को देखो, ये क्या क्या कर लेते हैं। जापान में ऐसे भी हैं आर्चर्स कि वो पूरे बुलजाई में मारते हैं, वो हैं जी, और उसके बाद जो होता है, जो छोड़ते हैं, वो पहले वाले तीर को चीरता हुआ जाता है अंदर। कैन यू इमेजिन? दैट्स द काइंड ऑफ प्रैक्टिस दे आर एबल टू अचीव। मतलब जापानी प्रैक्टिस मेक्स यू, आई एम सॉरी, नेवर परफेक्ट, बेटर। थोड़ी गलत फहमी है आपको। Practice never makes you perfect, is it not? Japanese are very, very clear about that it can only make you. So when it can make you better, you keep on practicing, is it not? Yes or no? जब आपको पता है कि परफेक्ट तो आप बन ही नहीं सकते, राइट? पर दिमाग में ये ख्याल आ गया कि प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, तो 3 दिन के बाद छोड़ देते हैं कि परफेक्ट से तो हो ही नहीं रही जी, पर बेटर तो है ना। That's what Matsushita philosophy was, that I will become better and better and better. Morning. Hey!